پروین اور سالس خاموشی سے سامنے رکھی ہوئی مورس کوڈ کی تحریر دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر حیرت تھی، جیسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ ماجرا کیا ہے۔ ترجمے میں صرف نمبرز کی ایک لمبی سی قطار تھی، ساتھ ہی ایک بینک کا نام اور سیف ڈپازٹ باکس کا نمبر لکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی ماں نے اس وقت کچھ قیمتی چیزیں بینک کے لاکر میں چھوڑی تھی۔ کیا وہ V16 ہو سکتا تھا؟ پروین کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ سالس نے نرمی سے پوچھا، کب جا رہی ہو وہ چیز لینے؟ پروین نے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں دوبارہ کاغذ پر جم گئیں۔ لاکر بینک آف نیو یارک میں تھا، لیکن اگر وہ اچانک واپس نیو یارک جا کر سیدھے وہاں پہنچ گئے تو ان کے پیچھے لگے لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کچھ چل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ خود نہ جائیں اور کسی اور کو بھیجیں تو کیا یقین تھا کہ ماں نے کوئی جال نہ بچھا رکھا ہو؟ ذرا سی بے احتیاطی میں بھیجنے والا شخص خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ یعنی اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پتہ لگایا جائے کہ ان پر کتنی کڑی نگرانی ہے، اور پھر انہیں نیو یارک بینک جانے کا ایک مناسب بہانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ پروین نے ہلکی سی سانس لی، کھاتہ بند کیا اور بولی، موقع دیکھ کر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سالس نے مختصر جواب دیا۔ اس رات دونوں بے چین رہے، بستر پر لیٹے بھی نیند نہ آئی۔ پہلی بار پروین کو انسومنیا کا سامنا تھا۔ کافی دیر اندھیرے میں آنکھیں بند رکھ کر سوچتی رہی، پھر اچانک رخ موڑ کر بولی، جارڈ کی لڑنے کی صلاحیت کیسی ہے؟ سالس کی سانسیں ہموار تھیں، مگر پروین کو اندازہ تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ ٹھیک تھی، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، اتنی خطرناک نہیں جتنا ہم سمجھے تھے۔ واقعی؟ پروین کو یقین نہیں آیا۔ اگر جارڈ کی قابلیت صرف ٹھیک تھی تو پھر سالس کو اسے قابو کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ پھر وہ خود ہی بولی، ہو سکتا ہے تمہاری اسکول کی چالیں زیادہ دماغی ہوں، انہیں شکست دینے میں وقت لگتا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے سکون کی سانس لی۔ شاید جینیاتی سیرم کا اثر اتنا خوفناک نہیں تھا۔ اس کی تمام فکریں فضول تھیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ پرسکون نیند میں ڈوب گئی۔ سالس خاموشی سے اٹھ بیٹھا، بغیر آواز کیے بیت الخلاء میں گیا، دروازہ بند کر کے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، پھر اس نے اپنی ریشمی نائٹ سوٹ کی پتلون اوپر اٹھائی۔ ران پر بڑا سا نیلا نشان پھیلا ہوا تھا۔ اس نے برف رکھی، ہلکے ہاتھ سے مالش کی، پھر قمیض اتار کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پیٹھ پر گہرے نیل اور ہلکا خون تھا۔ زخم اتنے شدید تھے کہ عام انسان تو چل بھی نہ سکتا تھا، مگر وہ اب تک مسکرا رہا تھا۔ یہ سب جارڈ سے لڑائی کے دوران ہوا تھا، اور جارڈ وہ بھی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ لیکن بات سوچنے والی یہ تھی کہ اگر ایک عام شخص صرف سیرم لگوا کر اس جیسے ماہر کو ہرا کے برابر لڑ سکتا ہے تو جس نے یہ تخلیق کیا اس کے پاس تو درجنوں جارڈ جیسے لوگ ہوں گے۔ ایک یا دو سے وہ نمٹ سکتا تھا، لیکن اگر 10 ہوں؟ سالس نے برف ہٹائی، چہرے پر سنگینی چھا گئی۔ دشمن بہت طاقتور ہے اور بہت پرانا بھی۔ یہ سیرم 20 سال پہلے بنا تھا۔ کون جانے اتنے برسوں میں انہوں نے کس حد تک اپنی طاقت بڑھا لی ہو۔ اب سمجھ آیا کیوں زورد نے خودکشی کو بہتر سمجھا تھا، اور کیوں اتنے سالوں کی تحقیقات کے باوجود محکمے کو کچھ خاص ہاتھ نہ آیا۔ سالس نے ابرو سکیڑی، موبائل نکالا اور پیغام لکھا، لارنس، شان، سیکیورٹی بڑھاؤ، سب لوگوں کو واپس بلا لو۔ شان نے جواب دیا، جی سر۔ لارنس نے آدھی سانس بعد لکھا، جی باس، کچھ ہوا ہے کیا؟ سالس نے گہری سانس لی اور لکھا، بچوں اور پروین کی حفاظت کرو۔ جی سر۔ پھر اس نے مزید ہدایات دیں اور آہستگی سے واپس بستر پر جا لیٹا۔ اگلی صبح جب پروین جاگی تو سالس تیار کھڑا تھا، چہرہ تازہ، لباس بدلا ہوا۔ چلیں نیو یارک واپس؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، پروین نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر آہستہ سے بولی، لیکن جانے سے پہلے ایک کام ہے۔ 1 گھنٹہ بعد ملک خاندان کے گھر۔ پروین نے ولا کی چابی شائستہ کو دی۔ خالہ شائستہ، آپ لوگ وہاں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے؟ شائستہ نے انکار کرنا چاہا، مگر سالس نے فوراً کہا، اگر گھر خالی رہے تو برباد ہو جائے گا۔ پروین وہیں پلی بڑھی ہے، آپ لوگ وہاں رہیں گے تو گھر بھی سنبھل جائے گا۔ یہ سن کر شائستہ اور برہان نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔
پروین نے اگلا مرحلہ پورا کیا۔ انکل برہان، کمپنی کی ذمہ داریاں کچھ دن آپ سنبھال لیجئے جب تک ہم نیو یارک سے لوٹیں۔ برہان نے اعتماد سے کہا، فکر مت کرو، کمپنی میرے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ تمام ذمہ داریاں بانٹ کر وہ دونوں نیو یارک روانہ ہو گئے۔ ادھر سوئٹزرلینڈ میں سمندر کی لہروں پر ایک عظیم الشان کروز شپ بہہ رہی تھی۔ جہاز پر ہر سہولت موجود تھی، ریسٹورانٹس، بوتیک، کمرے، مگر کوئی مسافر نہیں تھا۔ پورا جہاز کسی ایک شخص کے نام پر مخصوص تھا۔ ایک خاموش کمرے میں آئرہ پرسکون نیند میں لیٹی تھی۔ ایک لمبا سنجیدہ شخص اس کے قریب کھڑا تھا، نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پیار سے بولا، آئرہ اٹھ جاؤ، تمہاری چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کے سامنے اس کی پسندیدہ صبح کی چائے خاموشی سے بھاپ چھوڑ رہی تھی۔ بستر پر لیٹی عورت بالکل بے حرکت تھی۔ اس کا چہرہ اتنا زرد پڑ چکا تھا کہ جیسے اس کی جلد میں سے سارا رنگ نکل گیا ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسیں کب کی رک چکی ہوں، لیکن زارق نعمانی کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نہ تھی۔ وہ نرمی سے آئرہ کے چہرے پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اس کے وجود میں پھر سے جان ڈال دینا چاہتا ہو۔ وہ یوں ہی تقریباً 10 منٹ تک اس کے چہرے کو چھوتا رہا، یہاں تک کہ آئرہ نے گہری سانس لی۔ اس کی بند پلکیں لرزیں اور اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ آئرہ کی نظر سیدھی زارق کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس کی لمبی پلکوں کے نیچے آنکھوں میں ایک تھکن، ایک بے بسی سی جھلک رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بولی، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو زارق؟ اس دن جب زارق کے ہاتھوں اس کا گلا دب گیا تھا، آئرہ واقعی مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس لمحے اس کی سانسیں بند ہو چکی تھیں، لیکن جیسے ہی زارق کو احساس ہوا کہ وہ واقعی سانس نہیں لے رہی، وہ فوراً گھبرا گیا، فوراً اس پر CPR کر کے اسے زندگی واپس لوٹا دی۔ اسی دوران اسے اطلاع ملی کہ پروین ہی اصل کیو ہے۔ تب جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ دراصل مہدی سے شرط ہار چکا ہے۔ تب آئرہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ زارق نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کانپتی آواز میں پوچھا، ایسا کیوں دیکھ رہی ہو میری طرف؟ آئرہ نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نے تمہیں ایک زندگی واپس لوٹا دی ہے۔ کیا اب ہمارا پرانا حساب ختم ہو گیا؟ کیا یہ کافی تھا؟ آئرہ بہت پہلے ہی زارق سے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ جب اس نے مدد مانگی تھی تو زارق نے اس کے جذبات کا امتحان لینا شروع کر دیا تھا۔ تبھی اس کے دل میں اس کے لیے بس مایوسی باقی رہ گئی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا کہ کیا وہ اس سے محبت کرتی تھی تو ہاں، کسی حد تک ضرور، لیکن آئرہ کے لیے محبت زندگی کا سب کچھ نہیں تھی۔ اس کے نزدیک خاندانی رشتے، دوستی اور خود زندگی محبت سے کہیں زیادہ قیمتی تھے۔ پھر بھی اگر کوئی کہتا کہ وہ زارق کو بھول گئی تو یہ بھی سچ نہ ہوتا۔ آخر وہ اس کی پہلی محبت تھا، اور پہلی محبت کبھی آسانی سے بھلائی نہیں جاتی۔ جب وہ برسوں بعد اس سے دوبارہ ملی تو دل کے کسی گوشے میں ایک دھچکا سا لگا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کہانی کو دوبارہ شروع نہیں ہونے دے گی۔ آئرہ اور زارق ایک دوسرے کے مقروض تھے۔ زارق اس کا مقروض تھا اعتماد کا، اور آئرہ اس کی مقروض تھی محبت کی۔ زارق نے جب اپنی غلطی کا احساس کیا تو پچھتاوے نے اسے پاگل سا کر دیا۔ اس نے آخر کار سمجھ لیا کہ کسی سے سچی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اسے آزماؤ یا قید میں رکھو، بلکہ اسے خوش دیکھو، چاہے وہ تمہارے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اب آئرہ اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل آزاد ہو چکا تھا۔ جب اس نے جانے کی بات کی، زارق نے اجازت نہ دی اور زبردستی اسے اپنے ساتھ سمندری جہاز پر لے آیا۔ اب اس بندر کے بیچ تھی جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ آئرہ خاموش رہی۔ اس نے اسے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جانتی تھی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زارق کمرے میں داخل ہوا اور اس کے قریب آ کر بولا، آئرہ، یہ کافی ہے، تمہاری بات بالکل درست تھی۔ آئرہ، یہ کافی ہے، تمہاری بات بالکل درست تھی، چلو کچھ کھا لو پلیز۔ آئرہ 3 دن سے نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اس کا جسم نڈھال تھا، لیکن اس نے گردن موڑ لی۔ میں نے کہا تھا جب تک تم مجھے آزاد نہیں کرتے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ زارق، اب ہمارے درمیان کوئی قرض باقی نہیں رہا، تمہیں مجھے قید میں رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ زارق نے لمبی سانس لی اور کہا، میں تمہیں قید نہیں کر رہا آئرہ، میں صرف دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آئرہ کی آواز کمزور مگر فیصلہ کن تھی، یہ ممکن نہیں، ہم دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں رہا، نہ رشتہ نہ قرض۔
ज़ारिक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ बोलना चाहता था मगर आयरा ने आंखें बंद कर ली और करवट बदल कर लेट गई जैसे सो गई हो। ज़ारिक खामोशी से उसकी पीठ देखता रहा, फिर धीरे से पीछे हटा और दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ के साथ ही आयरा के होंठों से एक हल्की सी सांस निकली, आज़ादी की, सुकून की। लेकिन चंद लम्हे ही गुजरे थे कि दरवाज़ा दोबारा खुला और ज़ारिक के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, आयरा, मैंने एक हल सोच लिया है। आयरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या करने जा रहे हो तुम? आयरा कुछ देर के लिए शशदर रह गई। ज़ारक नुमानी ने हुक्म दिया कि कमरे में एक बड़ा सा मछलियों का शीशा टैंक लाया जाए। वो टैंक आधे कद जितना ऊंचा और तकरीबन 3 फुट लंबा था। एक मुलाजिम हाथ में तश्तरी लिए उसमें पानी डाल रहा था, तो 3 बार भरते ही वो टैंक लबरेज हो गया। आयरा समझ नहीं पा रही थी कि ज़ारक आखिर क्या करने जा रहा है। जब खादम पानी भरकर निकल गए तो कमरे में सिर्फ ज़ारिक और आयरा रह गए। ज़ारिक की आंखों में अजीब सा जुनून था, ऐसा प्यार जो मोहब्बत से बढ़कर पागलपन लग रहा था। अचानक वो बोला, आयरा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, इसलिए मैंने एक बार तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की है। आज मैं तुम्हारा बदला तुम्हारे लिए खुद लूंगा। ये कहकर उसने सर झुका लिया और पानी में डुबो दिया। आयरा के सांस रुक गए। वो फौरन सीधी होकर बैठी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया पिया था। अचानक हरकत से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सर झटक कर वो मुश्किल रोशनी में वापस आई। उसने देखा ज़ारिक के दोनों हाथ मछली टैंक के किनारों को मजबूती से थामे हुए थे और उसका सर अब भी पानी में डूबा हुआ था। ज़ारिक, तुम पागल हो गए हो? आयरा चीखी और आगे लपकी। उसने उसका कॉलर पकड़कर खींचना चाहा मगर ज़ारिक पहाड़ की तरह जमी हुई दीवार बन गया। आयरा के नाजुक हाथों की सारी ताकत बेकार गई। वो घबराकर टैंक पर मुक्के मारने लगी। पानी के अंदर ज़ारिक ने आंखें खोली। उनकी सुर्खी डर और जिद के बीच छलक रही थी। उसने लब हिलाए, आवाज़ न निकली मगर आयरा समझ गई कि वो कह रहा था, अब भी नाराज़ हो? आयरा जैसे पत्थर की बन गई। पानी के अंदर वो आंखें जिद से भरी, ऐसी कि अगर वो नाराज़गी न मिटाती तो सचमुच अपना दम तोड़ देता। आयरा ने जल्दी से सर हिलाया। नहीं नहीं, नाराज़ नहीं हूँ मैं। वो वाकई अब गुस्से में नहीं थी, बस दिल थक गया था। मगर ज़ारिक फिर भी पानी से न निकला। उसके होंठ दोबारा हिले। खाओगी? आयरा ने लब भींचे। अगर खाती तो हार मानती, लेकिन अब उसकी उम्र इतनी थी कि वो चाहती थी घर, खानदान और नवासों के बीच जिंदगी सुकून से गुजरे। वो तो जब में थी कि अचानक ज़ारिक की आंखें ऊपर पलटने लगी। वो दम तोड़ने के करीब था। ज़ारिक, बाहर निकलो, सुन रहे हो? बाहर आओ। मगर वो बिल्कुल साकत था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक आयरा जवाब न दे। 1 मिनट गुजर चुका था। पानी में उसका जिस्म ढीला पड़ने लगा। आयरा के हवास जब टूट गए। ठीक है, खाऊंगी, सुन रहे हो? खाऊंगी। इतना सुनते ही ज़ारिक ने हाथ ढीला छोड़ दिया मगर अब उसमें सकत नहीं थी। उसका जिस्म पानी में गिर पड़ा। आयरा ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा। छपाक, पानी पूरे फर्श पर फैल गया। ज़ारिक जमीन पर गिरा, सांस फूल रही थी, चेहरा सफेद। आयरा उसके करीब पहुंची और एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाख! पागल हो तुम, मुकम्मल पागल। मगर ज़ारिक सिर्फ मुस्कुरा दिया, वही खामोशी, सादा सी मुस्कुराहट जैसे बरसों पहले उनकी पहली मुलाकात में थी। तब वो जवान थी और वो एक शर्मीला गुमसुम सा लड़का। कितने ही अमीर मर्द उसके पीछे थे मगर उसने चुना था उसे, वो लड़का जो कुछ न जानता था, न तोहफा देना, न मोहब्बत जताना। बस उसकी हॉस्टल के नीचे खड़ा रहता और जब वो उतरती तो बस मुस्कुरा देता। आज उसके सामने वही चेहरा था, बस वक्त ने झुर्रियों का लम्स दे दिया था। आयरा ने नजरें झुका ली, कुछ न कहा। उसी वक्त खुद्दाम अंदर आए, फर्श साफ किया, टैंक हटाया और आयरा के लिए खुश्क लिबास रखा। वो सहाने में गई, कपड़े बदले, वापस आई तो देखा ज़ारिक भी बदल चुका था, पुरसुकून, और मेज पर उसके पसंदीदा नाश्ते लगे थे। वो खामोशी से कुर्सी की तरफ बढ़ी। ज़ारिक ने फौरन कुर्सी खींच दी। पूरे अदब के साथ आयरा ने आह भरी, अगर ना खाऊं तो जाने ये और क्या करे। दिल में सोचा, चलो समझ लो, बाग की जिंदगी
बाग की जिंदगी एक छुट्टी थी। अब खा पी लो, अब खा पी लूं, सेहत संभाल लूं, फिर जब मौका मिला वापस जाऊंगी अपने घर, अपने बच्चों के पास। ज़ारिक की तरफ नजरें न उठाते हुए उसने खाना शुरू कर दिया। ज़ारिक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो मुसलसल नवाले आगे बढ़ाता रहा, मगर आयरा ने कुछ ना कहा, कुछ ना लिया। आखिरकार इसने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। आयरा ने चाहा कि कह दे, ज़ारिक, नहीं, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, मगर उसकी नजरें उठी। ज़ारिक के चेहरे पर जुनून भरी यकीन था। होगा आयरा, ज़रूर होगा। आयरा चुप रही। नाश्ता खत्म करके वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, मगर कमजोरी बाकी थी। कमरे में कैद रहना नहीं चाहती थी, और ज़ारिक के साथ रहना तो बिल्कुल नहीं। इसी दौरान ज़ारिक ने कहा, आयरा, देखो कौन आया है। दरवाज़ा खुला। मिसेस अब्बासी अंदर दाखिल हुईं। उसने बढ़कर कहा, बेगम साहिबा। आयरा की आंखों में हैरत उतर आई। ज़ारिक ने वजाहत की, हम समंदर पर कुछ दिन रहेंगे। मैंने सोचा तुम अकेली बोर न हो जाओ, इसलिए इन्हें बुला लिया। ये क्रूज शिप तुम्हारी पसंद का है। शॉपिंग करो, जो चाहे खरीदो, कोई हद नहीं। वाकई ये एक शानदार क्रूज था, ऐसा जैसे पानी पर तैरता महल। हर सहूलत, हर दुकान, हर खुशबू यहाँ थी। पूरी कश्ती उसने किराए पर ले रखी थी। आयरा ने नीचे देखते हुए मिसेस अब्बासी का हाथ थामा। चलो बाहर चलते हैं, कम से कम बाहर जाकर सांस तो लिया जा सकता है। उसके सामने बैठे इस दीवाने से दूर आखिर कब तक समंदर भी रुकेगा। कहीं ना कहीं तो लंगर डालना ही है। आयरा और मिसेस अब्बासी बाहर निकल गईं। दरवाजा बंद होते ही रामीन अंदर आया। आहिस्ता से बोला, बॉस, किंग का फिर फोन आया है। पूछ रहा था आपका और मेहदी का असल रिश्ता आखिर है क्या। जारक नुमानी की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने रामीन की बात सुनी। सच तो ये था कि जब उसने आयरा को अगवा किया था तो उसका मकसद सिर्फ उसे अपने साथ ले जाना था, मगर उसने कभी भी ना सोचा था कि मेहदी खानदान इतना मजबूत निकलेगा। और सबसे बढ़कर सालिस वो नहीं था जो दिखाई देता था। वो दोनों उसे ऐसे कोने में धकेल चुके थे जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन था। जब वो न्यूयॉर्क से बमुश्किल फरार हुआ और अपने इलाके में वापस जाने लगा, तभी उसे किंग का फोन आया। आवाज भारी थी, ज़ारिक, आयरा को वापस घर पहुंचा दो। उसी लम्हे ज़ारिक को हकीकत समझ आ गई। यही वजह थी कि किंग ने उसे हिस्से इतनी भारी कीमत पर बेचे थे। वो तो पहले ही मेहदी के साथ खड़ा था। ज़ारिक हैरान रह गया। तो किंग दरअसल इनका हमायती है। इसे किंग और मेहदी के ताल्लुक का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था कि किंग से दुश्मनी करने वाला जिंदा नहीं रहता। इसलिए उसने वज़ाहत इताअत का मुजाहरा किया, फ़ोन पर जी सर कहा, मगर अगले ही लम्हे आयरा को क्रूज शिप पर ले आया, समंदर पर। वो किंग की पहुंच से बाहर थे। अगर पहुंच भी गया तो वो कुछ नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि उसने आयरा को यहाँ लाया था, लेकिन इसके पीछे एक और राज भी था। यूनिवर्सिटी के दिनों में ज़ारिक ने आयरा से पूछा, तुम्हें छुट्टियां गुजारने का सबसे पसंदीदा तरीका क्या लगता है। आयरा ने हंसते हुए कहा, पहाड़ पर चढ़ना मुझे नहीं भाता। पसीना, धूप, बदबू नहीं, शुक्रिया। मुझे तो क्रूज पर सफर पसंद है, आराम से समंदर के बीच, दुनिया की सैर, और थकन भी नहीं। तब जारिक ने वादा किया था, एक दिन तुम्हें ले जाऊंगा। आज वो सिर्फ अपना वादा निभा रहा था। ये सोचकर उसने सैटेलाइट फोन लिया। दूसरी तरफ से गहरी आवाज आई, जारिक, आयरा अभी तक वापस क्यों नहीं आई। जारिक ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी, हम कुछ पुराने वादे पूरे कर रहे हैं। वक्त अच्छा गुजर रहा है, फिक्र ना करें मिस्टर किंग। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर किंग की आवाज गुदगुदी, अगर उसके साथ कुछ हुआ तो तुम्हें इतनी अजियतनाक मौत दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जारे का दिल एक लम्हे को कांप गया। किंग से कोई बहस नहीं करता था। जब वो बच्चा था और इंपीरियल लीग का रुकन बना था, तब भी किंग उस ग्रुप में 40 साल से मौजूद था। एक बार किसी ने उसकी मुखालफत की थी और उसकी 100 साल पुरानी सल्तनत एक माह में ज़मीन बोस हो गई थी। किंग ने अमल से साबित किया कि वो किंग क्यों कहलाता है। तारिक, जो खुद सफाक फितरत का आदमी था, उसका भी खून जम गया। फिर भी उसने पूछने की हिम्मत की, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका मेहदी खानदान से रिश्ता क्या है। आप उनकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं। किंग हंसा, एक सर्द पथरीली हंसी। वो बातें मत पूछो जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए। इतना याद रखो, आयरा मेरी रिश्तेदार है। जो उसे नुकसान पहुंचाएगा उसकी कीमत अदा करेगा। रिश्तेदार?
यानी खून का रिश्ता। ज़ारे का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा था कि अगर वो अपने कसूर सुधार ले तो आयरा वापस आ जाएगी, जैसे साकिब ने उसके एक इशारे पर तलाक दे दी थी। मगर अब पता चला आयरा के पीछे तो किंग जैसी ताकत है। तो फिर जब मेहदी अगवा हुआ था तो आयरा ने उससे मदद क्यों ना ली? क्या वो खुद किंग से दूर रहना चाहती थी? ज़ारिक उलझ गया। मजीद कुछ पूछने से पहले किंग ने फोन काट दिया। अब ज़ारिक के अंदर शक की चिंगारी जाग उठी। उसने रामीन की तरफ देखा। आयरा के माजी की मुकम्मल तफ्तीश करो, हर रिश्ते, हर ताल्लुक की। रामीन ने सर झुकाकर कहा, जी बॉस। न्यूयॉर्क, मेहदी हवेली। सालिस ने फोन बंद किया और गहरी सोच में डूब गया। ज़ारिक खतरनाक था, एक पागल मगर जिद्दी इंसान। अगर उसे ज्यादा दबाया गया तो वो अपने साथ आयरा को भी खत्म कर सकता था। इसलिए सालिस ने जानबूझकर किंग के नाम का सहारा लिया था, ताकि ज़ारिक कुछ सोच समझ कर कदम उठाए। वो जानता था ज़ारिक चाहे जितना शफाक हो, आयरा को तकलीफ देना नहीं चाहता, वरना वो 20 साल इंतजार क्यों करता। शान कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, हमें उनकी लोकेशन मिल गई है। ज़ारिक के पास एक क्रूज शिप है जो 3 दिन पहले रवाना हुआ था। तमाम टिकट होल्डर्स को रिफंड और कंपनसेशन दी गई। यानी ये पूरा जहाज उसने सिर्फ अपने लिए खरीदा। हमने वहाँ के एक बंदे से रब्ता किया है। इतला ये है कि आयरा बिल्कुल ठीक है और ज़ारिक उससे माफ़ी मांग रहा है। शान ने सांस ली। मसला ये है कि उसके जहाज पर उसके आदमियों की भरमार है, हमारा सिर्फ एक मुखबर है। बगैर खतरे के उसे नहीं निकाला जा सकता। अगर हम हेलीकॉप्टर या कश्ती भेजें तो शोर से खतरा बढ़ेगा, इसलिए फिलहाल बेहतर यही है कि वो खुद लौटे जब सब ठीक हो जाए। ये सुनकर सालिस के चेहरे पर सुकून उतरा। कम अज कम अभी वो महफूज थी। उन पर मुसलसल नजर रखो। सालिस ने कहा, एक जहाज हमारे आदमियों के साथ इनके पीछे रवाना करो। फासला रखें मगर निगाह भी। अगर कोई खतरा नजर आए तो फौरन कार्रवाई। जी सर। शान ने फोन निकाला और अहकामात दिए। फिर उसने देखा सालिस मेज पर फैले नक्शे में एक बैंक की जगह पर नजर गाड़े हुए था। सर, क्या हुआ? सालिस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अपने आदमी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के आसपास तैनात करो। मैं और फरवीन अगले 2 दिन में वहां जाएंगे। जी सर। शान पलटा ही था कि सालिस ने रोक लिया। रात मेरे साथ चंद माहिर लोग रखो। शान चौंक गया। सर, आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी चलता हूँ। नहीं, सालिस ने नरमी मगर कतियत से कहा, तुम्हारी जरूरत हवेली और इंपीरियल लीग में है। शान चुप हो गया। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे सालिस आखिरी वसीयत कर रहा हो। इसने चंद काबिल तरीन अफराद बुलाए, फिर खामोशी से देखा। सालिस अंधेरे में कदम रखता चला गया। इसी वक्त फरवीन भी चुपके से मेहदी हवेली से निकल गई। वो जा रही थी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ताकि आखिर जान सके कि माँ ने उसके लिए क्या छोड़ा था। परवीन के लिए अब इंतजार नामुमकिन हो गया था। मुमकिन है कि बैंक के लॉकर में B16 मौजूद ना हो, बल्कि इसके मतलब कोई सुराग हो। मगर हकीकत ये थी कि जेंडर के पास सिर्फ 2 माह और 20 दिन बाकी रह गए थे इस चीज के बाद। उसने B16 लेना ही था। अब हर गुजरता दिन उसके लिए अजियत बन चुका था। खास तौर पर आज दोपहर जब वो कैलिफोर्निया से वापस आई तो पूरे घर का माहौल अजीब खामोश और बोझल था। शुमाइल अपने गेम्स नहीं खेल रही थी, ना ही हारिस अपने रियाजी के सवालनामे हल कर रहा था, बल्कि दोनों जेंडर के गिर्द बैठे थे। शुमाइल ने अपनी तमाम पसंदीदा बारबी गुड़िया और शहजादियों के कपड़े निकाल कर जेंडर को देना चाहे। जेंडर ने लेने से इनकार कर दिया। फिर हारिस ने भी कहा, मेरे सारे रियाजी के सवालनामे तुम्हें दे दूं? जेंडर ने उसकी भी बात रद्द कर दी। छोटा सा लड़का सोफे पर बैठा बेजारी से बोला, मुझे तुम लोगों की चीजें पसंद नहीं, मुझे तो सिर्फ जानवर पसंद हैं। शुमाइल ने फौरन कहा, मेरा एक मामू है जिसे जानवर बहुत पसंद है, उसके पास बेशुमार बिल्लियां और कुत्ते हैं। चलो हम लोग इस मामू से चंद जानवर मंगवा लेते हैं। जेंडर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो तुम्हारे मामू के दोस्त हैं, मेरे नहीं। शुमाइल बोली, लेकिन वो तुम्हारे भी मामू हैं, है ना? और अगर इन्हें इतने जानवर पालने में बहुत खर्चा आता है, अगर हम इनकी मदद करें तो वो खुश होंगे। हारिस ने भी तायद की, हाँ, उनके पास एक ऐसा कुत्ता भी है जिसके बालों में रंग बिरंगी धारियां हैं। जेंडर ने संजीदगी से कहा, तो क्या हुआ, वो रेनबो तो नहीं है ना? रेनबो उसके तीसरे कुत्ते का नाम था जिसके जिस्म पर मुख्तलिफ रंगों की धारियां थी। जेंडर ने उसका नाम रेनबो रखा था। हालांकि रेनबो खुद अपने नाम से नाखुश था, लेकिन आज सुबह वो रेनबो बाग के फर्श पर लेटा रह गया हमेशा के लिए। जेंडर जो जुदाई और मौत से मानूस हो चुका था, शुमाइल और हारिस के साथ मिलकर बाग में एक गड्ढा खोदा और रेनबो को दफना दिया। अब इस बाग में छोटी छोटी कई कब्रें थी, जेंडर के दोस्तों की आखिरी आरामगाहें।
जब भी वो वहां जाते दिल भारी हो जाता। शुमाइल ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, जेंडर तुमने क्या फैसला किया? तुम मेरा खानदानी नाम रखोगे या हारिस का? जेंडर ने कंधे उचकाए, अभी सोचा नहीं। शुमाइल बोली, मेरी तरह स्मिथ रख लो, दादा खुश हो जाएंगे। हारिस ने फौरन कहा, नहीं, लड़कों को बाप का नाम रखना चाहिए, मेहदी ज्यादा बेहतर है। शुमाइल हंस पड़ी, फिर तो तुम दोनों जायदाद में हिस्सेदारी पर लड़ोगे। बेहतर है जेंडर स्मिथ बने, नाना की दौलत का वारिस। हारिस और जेंडर दोनों ने एक साथ पूछा, और तुम? शुमाइल शरारत से मुस्कुराकर कहा, मेरे पास ग्रैंड आंट है। हारिस और जेंडर हैरान हुए। शुमाइल बोली, ग्रैंड आंट के बच्चे नहीं हैं, वो हमेशा कहती हैं उनकी सारी चीजें मेरी हैं। शहजादी लूसी गवाह है, वही लूसी जो पिछली बार शुमाइल की सालगिरह पर आई थी और 3 दिन तक उसके साथ रही। बाद में हालात के बिगड़ने पर सालिस ने उसे वापस भेज दिया। शुमाइल ने ठंडी सांस ली और कहा, मुझे अपनी ग्रैंड आंट की बहुत याद आती है। जेंडर सारा वक्त चुप रहा, यहाँ तक कि जब परवीन घर लौटी और तीनों बच्चे उसके पास आए, उसने सबके साथ खेला, मगर जेंडर का चेहरा अब भी बेरंग था। वो अपने एहसास छिपाने का आदी हो चुका था। खाने के बाद फौरन परवीन ने तीनों बच्चों को सोने के लिए भेज दिया। तीनों जिद करके उसी के कमरे में सोए। शुमाइल तो जल्द सो गई, मगर हारिस बार बार जेंडर को देख रहा था। परवीन ने उसके सर पर हाथ फेरा। कितना हसास बच्चा था वह, दूसरों के जज्बात को पहचानने वाला और खुद चुप रहने वाला। मगर जेंडर करवटें बदलता रहा। आखिरकार परवीन ने अपनी बनाई हुई खुशबूदार नींद अंगेज धूनी जलाई, तब जाकर दोनों सोए। परवीन उठी परवीन उठी कि देखे सालिस क्या कर रहा है, मगर अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि जेंडर की नींद में कांपती आवाज उभरी, मम्मी, मुझे बचाएं, मुझे बचाएं। रेनबो, मैं नहीं मरना चाहता। रेनबो, मिट्टी में ठंड लगती है क्या? मरने के बाद दर्द होता है क्या? रूह को कुछ महसूस होता है? परवीन रुक गई, जैसे जमीन से जुड़ गई हो। इसने खुद वो खुशबू जलाई थी ताकि वो ना जागे, लेकिन उसके अल्फाज ने उसके दिल पर खंजर मार दिया। जेंडर अंदर से टूट रहा था और उसने कभी बताया नहीं। वो जानवरों के मरने पर रोता था, लेकिन हकीकत में वो अपने लिए खौफजदा था। मौत का खौफ एक बच्चे के लिए नहीं, एक जीते जागते ज़हीन इंसान के लिए था। परवीन ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। वो ऊपर साले से मिलने नहीं गई। इस वक्त उन दोनों ने वापसी के वक्त तय किया था कि पहले ताक़ुब करने वालों को चकमा देंगे, फिर बैंक जाकर लॉकर देखेंगे। मगर वो अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। सालिस जॉर्ज से लड़ाई के बाद इंतहाई मोहतात हो गया था। फरवीन को अंदाजा हो चुका था कि ताक़ुब करने वाले लोग आम नहीं थे। उस्मान के मुताबिक इस वक्त के 5 बच्चे जो जिंदा थे, आज किसी न किसी बड़े मुकाम पर थे। ट्रूमैन और उस्मान स्विट्जरलैंड में थे, मगर बाकी 3 अब भी V16 की तलाश में थे। परवीन उन्हें पहचानती नहीं थी, न उनके सुराग उसके पास थे, लेकिन अगर वो मजीद रुकी तो शायद वो जेंडर को ना बचा सके। आखिर वो एक बैंक लॉकर ही तो था, वो खुद जाकर निकाल लेगी। ये सोचकर उसने चादर ओढ़ी और मेहदी हवेली से चुपके से निकल गई। गाड़ी नहीं ली, बल्कि अंधेरे में ताक़ुब करने वालों से चकमा देती हुई बार बार रास्ता बदला। आखिरकार वो उन सब से बचकर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जा पहुंची। बैंक बंद था, ताला लगा हुआ था, मगर परवीन के लिए कोई मसला नहीं था। उसने अपना मोबाइल निकाला, चंद तेज उंगलियों की जुम्बश हुई, क्लिक, दरवाजा खुल गया और परवीन अंदर दाखिल हो गई खामोशी से। फोन के हॉल बैंक के हॉल के अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था। परवीन ने अंदर दाखिल होते ही फौरन अपना मोबाइल निकाला और इसकी स्क्रीन रोशन की। इस पर बैंक का मुकम्मल नक्शा मौजूद था। अगरचे उसकी माँ को यहाँ चीजें जमा किए हुए 20 वर्ष से ज्यादा हो चुके थे, मगर सेफ लॉकर्स का असल मुकाम आज भी वही था, यूं जैसे वक्त उन पर असरअंदाज ही न हुआ हो। लिहाजा परवीन को यकीन था कि उसकी माँ की छोड़ी हुई चीज अभी भी वहीं मौजूद है। इसे अच्छी तरह याद था, लॉकर नंबर 06 और पासवर्ड उसकी अपनी सालगिरह। वो दबे पांव उस समय चल पड़ी। बैंक के अंदर कोई हमला नहीं था, सिर्फ चंद सिक्योरिटी गार्ड थे
جو راہداریوں میں گشت کر رہے تھے، مگر پروین کے لیے ان سے بچنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ اندھیرے میں اس طرح گم تھی جیسے سایہ خود ہو۔ نرم قدموں سے چلتی ہوئی وہ سیف لاکر کے حصے کی طرف بڑھی، مگر ابھی 2 کمروں سے گزری ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پروین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ ایک جھٹکے سے وہ دیوار کے کنارے ساکت ہو گئی۔ پیچھے جھانکا، ایک سایہ تیزی سے گزرا۔ یہ جگہ آج رات محفوظ نہیں تھی اور وہ یہاں اکیلی نہیں تھی۔ یہ احساس آتے ہی اس نے ہونٹ کاٹ لیے۔ کیا اس کے تعاقب کرنے والے لوگ اب بھی اس کے پیچھے تھے؟ اگر ایسا تھا تو مطلب یہ کہ اس کا پیچھا کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، بلکہ کوئی ایسا جو اس سے زیادہ ماہر۔ کیا وہ شخص جارڈ کا باس تھا؟ کیا وہ انہی 5 بچوں میں سے ایک تھا جو جن سیرم والی تیربتی لیب سے زندہ بچے تھے؟ یقیناً وہ انہی میں سے ایک ہوگا۔ پروین کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس کے ذہن میں منصوبے تیزی سے گردش کرنے لگے۔ اب کیا کرے؟ اگر وہ واپس بھی چلی جاتی تو وہ شخص یقیناً جان چکا تھا کہ اس بینک میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ پھر چاہے وہ خود نہ بھی جاننا چاہتا ہو کہ کون سا لاکر اہم ہے، وہ تمام لاکرز کی تلاشی لے کر بالآخر سراغ حاصل کر ہی لیتا۔ یعنی اب واپسی کا راستہ بند تھا۔ آج رات پروین کو ہر حال میں وہ چیز حاصل کرنی تھی جو اس کی ماں نے یہاں چھوڑی تھی، ورنہ دشمن پہلے پہنچ جاتا۔ یہ سوچ کر اس نے گہری سانس لی، قدم روکے، پھر اچانک حملہ کیا۔